So there are reports that you are open to an alliance with NDA. So Now, what is your stance? let me clarify 2-3 things which have been taken either out of context or are being played up. let's just say taken out of context. First and foremost, National Conference was a member of the India Alliance. We continue to remain a member of the India Alliance. On the question of seat sharing, we have been very clear for the last few months that in the 6 seats of erstwhile Jammu and Kashmir, Ladakh, 3 seats in the valley, including Rajouri Poonch, Jammu and Udhampur. 3 seats are already with India Alliance, the ones that National Conference won in the previous parliament election. Therefore, the seats that are to be discussed are those seats that are held with the BJP. We are firm on that position. What the party president, Dr. Farooq Abdullah Sahab, talked about today while coming out of the office was a reflection of what the cadre of the party feels. The National Conference cadre has made no secret about the fact that they would rather fight elections on all seats. But the truth is that sometimes for a bigger objective, small sacrifices have to be made. If the bigger objective is to win seats back from the BJP, Jammu, Udhampur and Ladakh, then if it is necessary for the National Conference to enter into seat sharing understanding with the Congress, our doors are open. We have not yet had any formal discussions with the Congress, but informally some dialogue has taken place. There is scope for further discussion, but I would like to make very clear that our commitment to the India Alliance remains, even though founding members of the alliance unfortunately have over the last few weeks left. We are not amongst those who are leaving. We will continue our discussions with the Congress and we hope to arrive at some seat sharing understanding on that. As far as the NDA is concerned, we are not the sort of party that has our feet in multiple boats. Once we make friends, we stick to those friends. I am not sure how the journalist who is putting out this story arrived at the conclusion that our doors are open for the NDA, because they are not. I would like to make it categorically clear that no door, no window, not even a crack is open for the NDA. Our entire objective of fighting the parliament election first is to get seats back from the BJP. As and when assembly elections are announced, our aim in the assembly elections will be to come back with a sizable number so that we can start to undo the damage that the BJP has done to Jammu and Kashmir since 2019. To undo the damage, we can obviously not be a part of the NDA. And our entire campaign at that time, when the assembly elections happen, will be to target the BJP for everything that they have done to Jammu and Kashmir. तो ये कहना कि हम NDA में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये झूठ है, बेबुनियाद है. इसके मतलब मैं जानता हूँ ये क्यों किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमज़ोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं. बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है. तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये कि NDA के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम NDA के दरवाज़े को खटखटाने के लिए तैयार हैं. ना NDA के लिए दरवाज़ा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई ज़रा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है. जहाँ तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम NDA को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमज़ोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला. 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं. हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है. फॉर्मली, इनफॉर्मली कुछ बातें हुई हैं, उनको अब हम फॉर्मलाइज़ करेंगे. आगे आने वाले दिनों में हमारे तंजीम के जो साहिब सदर हैं वो अपने कुछ साथियों को बुलाएंगे. हम पहले अंदरूनी तौर इस पे मशवरा करेंगे और उसके बाद कांग्रेस से बात करेंगे
उमर साहब, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, अगर इंडिया अलायंस ने बोला कि उन पे भी डिस्कशन होगी, उन पे कोई डिस्कशन नहीं होगी ना। देखिए, अगर इंडिया अलायंस का मकसद आपस एक दूसरे को कमज़ोर करना है तो ठीक है ना, अब हम इन सीटों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को कमज़ोर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके आपको क्या मिलेगा? ये तो पहले ही 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी के पास होती या बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास होती, हम ज़रूर उन पे बात करते। लेकिन ये 3 सीटें पहले ही आपके पास इंडिया अलायंस के पास हैं। अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में जाने का मकसद क्या था? बीजेपी को रोकना या अपने आप को मजबूत करना? अगर बीजेपी को रोकना मकसद है, फिर आप हमसे सीट क्यों मांग रहे हो? अगर मकसद ये था कि आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, फिर जिस इरादे से आप इंडिया अलायंस में आए हो वो गलत है। हमारा इरादा सबसे पहले दिन से यही था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो 6 सीटें हैं इनमें हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। उसके लिए हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। उमर साहब, आपने कांग्रेस की बात की और पीडीपी है, उनका भी परसेप्शन सेम है जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो जिस तरीके से कंसिडरेशन में कांग्रेस को लिया जाएगा, क्या पीडीपी को भी साथ लेकर ज़रूर। चलेंगे? जहाँ जहाँ तक जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटों का सवाल है, जाहिर सी बात है कि इन बेल्ट्स में पीडीपी का भी थोड़ा बहुत असर रसूख होगा। पीडीपी ने भी इन सीटों पे वक्तन फ़वक्तन अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो जहाँ तक जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट है, मुमकिन है सीट शेयरिंग जब कांग्रेस और हमारी बातचीत ख़त्म होगी तो जिनको वो सीट दी जाएगी डायलॉग के बाद, उनको पीडीपी से भी बात करनी चाहिए इसके बारे में। क्या आप पीडीपी के साथ बात करेंगे इसके हवाले से? किस हवाले से? सीट शेयरिंग के हवाले ना, बड़ी पार्टी इसमें कांग्रेस है, हम अभी कांग्रेस से बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने ज़रूरी समझा पीडीपी को भी उन बातचीत में शामिल करना, हमें कोई एतराज़ नहीं है ना। कांग्रेस जिससे भी बात करना चाहे वो करें। उमर साहब, अभी जो पार्लियामेंट्री सीट अनंतनाग का मसला है, क्योंकि उसके साथ राजौरी भी ऐड हुआ है, तो उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी? मतलब आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे? हमें अपनी स्ट्रैटेजी पहले खुद तय करने दीजिए। तय करने के बाद हमें वो स्ट्रैटेजी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने दीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हम सबसे पहले तो, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारी मुकम्मल यही कोशिश होगी कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ की 6 सीटों में किसी भी सीट पे कामयाब नहीं होने देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा वो आप हम पे छोड़िए। उमर साहब, कुछ दिनों से हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लो रैंक लीडर्स निकल रहे हैं, क्या ये सेटबैक है एनसी के लिए? अब कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई जाए, लेकिन हम ज़बरदस्ती किसी को रोकना भी नहीं चाहते। कुछ लोग आए सिर्फ जाने के लिए। अब मैं उनके नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उनको यहाँ भेजा गया था सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन से पहले उनको यहाँ से वापस ले लिया जाएगा। और ऐसे 1-2 लोग जो हैं पिछले दिनों में यहाँ से चले गए। ठीक है ना, अब सियासत में अच्छी बात नहीं है, लेकिन आया राम गया राम का सिलसिला ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। मुझे कोई ऐसी सियासी पार्टी दिखाइए जिसमें लोग आने जाने का काम नहीं करते, होता रहता है। पीएम विजिट को कैसे देखते सर? मुल्क का हिस्सा हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बड़ी अच्छी बात है, आ रहे हैं। हम भी सुनना चाहेंगे कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को कहाँ फ़ायदा पहुँचा है, कौन से नए प्रोजेक्ट आए हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें प्रोजेक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म साहब से सुनना चाहेंगे वो ये कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने खुद 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सिलसिला है उसको एक पर्सनल उसको एक चैलेंज बनाया है। और सुनने में आया है कि वज़ीर आज़म साहब खुद चाहते हैं कि मुल्क में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। अगर वाकई मोदी साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें। हमें अब 10 साल हो गए असेंबली इलेक्शन देखे हुए, कितना और इंतज़ार कराना है वज़ीर आज़म साहब ने?
वो हम जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे ज़रूर उनसे सुनना पसंद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सितंबर 30 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है कहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर चलने के लिए तैयार है। सर, माना जा रहा है कि इलेक्शन से पहले जो है वो ईडी को इस्तेमाल किया जाता है जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन पे, उसको किस तरह देख रहे हैं? अब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद ये सिलसिला रुका नहीं है, चलता रहता है। बीजेपी की मुखालफत करने की कीमत यही है, और अगर यही कीमत है तो ठीक है ना, बीच बीच में हम वो कीमत जो है वो अदा करते रहेंगे। पहले दिन से हमने कहा है कि जहाँ कहीं एजेंसियों की हमें उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, हमें मतलब कोई चीज़ हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब कभी उन्होंने बुलाया है, गए हैं, फिर बुलाएंगे, फिर जाएंगे, और क्या। बीजेपी is constantly saying कि खा रहे हैं, what do you have to say about that? तो लद्दाख की सीट छोड़ गए। मैं उनकी जगह होता तो मैं 6 की 6 पे बात करता। अब शायद लद्दाख पे जो हालात हैं, लद्दाख पे उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए हैं। लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि कौन से हरबे इस्तेमाल होंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने 2019 के बाद सलूक किया है, जिस तरह लोग आज परेशान हैं, वादी की 3 सीटें जिसमें रजौरी पुंछ भी शामिल है, वो तो छोड़िए, आज तो बिना मोदी और मंदिर का इस्तेमाल किए हुए वो तो जम्मू और उधमपुर का भी सीट नहीं जीत सकते। वहाँ तो जम्मू और उधमपुर सीट जीतने के लिए उनको वो 3 M's इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मोदी, मंदिर और मनी। इन 3 चीज़ों के अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी सीट जीतने की पोजीशन में बीजेपी है नहीं। और सीधी सी बात है, अगर वाकई जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे बीजेपी जीत सकती थी, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उनके कहने और करने में तो सीधा यही तो फ़र्क रहता है, और उनकी बातों को झूठ इसी तरह साबित किया जाता है। अगर वो जीत सकते थे, उन्होंने अभी तक असेंबली इलेक्शन कराए होते। देखिए, अब बीजेपी जहाँ नहीं जीत सकती वहाँ या तो इलेक्शन नहीं कराते या चोरी करते हैं। अब बम्बई के म्यूनसिपैलिटी को वो जीत नहीं सकते, 3 साल से वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। चंडीगढ़ के म्यूनसिपैलिटी को वो जीत नहीं पाए, वहाँ खुल्लम खुल्ला लूट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी हैज़ बिन लूटेड। तो जम्मू कश्मीर में अगर वो जीत सकते थे, वो इलेक्शन करा देते। अब शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना नहीं करना चाहते। उमर साहब, अल्ताफ बुखारी ने बोला है PAGD और इंडिया अलायंस खाली कश्मीरियों को धोखा देने के लिए आज बोला शिकन में। जिस दिन बुखारी साहब लोगों के सामने खुले अल्फाजों में ये कहे कि उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई, मैं उनकी तमाम बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार रहूँगा। वो सबसे पहले तो अगली बार जब शुपयाँ जाएं, वो लोगों को ये बताएं कि उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने PDP छोड़ के अपनी पार्टी कायम की। जिस दिन वो ये बताएंगे, मैं उनके बाकी तमाम चीज़ों का जवाब दे दूँगा। थैंक यू।